Hello everyone, welcome to Prepsha's YouTube channel. तो इस वीडियो we'll see some tricks on fluid mechanics. So basically इस वीडियो में we'll see how we can calculate the force on a vertical surface due to fluid pressure. So basically again it's just a mathematical manipulation which makes calculation simpler, and if you know the result then you can solve questions directly in one line. So we'll see how the result comes and then we'll see few examples of how you can use the result to make calculation simple for yourself. सो लेट्स से दैट यू हैव दिस वर्टिकल सरफेस राइट, ये फ्लूइड का लेवल है, ऊपर प्रेशर पी नॉट है और इसमें हम वर्टिकल सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे. सो बेसिकली एनी सरफेस व्हिच इज परपेंडिकुलर है ना इन द डायरेक्शन ऑफ डेप्थ of the fluid, we'll try to calculate what the force will be because of the fluid pressure. So what the problem here is basically that at every depth, so let's say मैं y depth पे बात कर रहा हूँ, तो at this point the pressure will be we know p naught plus y rho g. So in this problem we'll assume that rho is constant, right? So if it varies then this will not work, but mostly problems में rho is constant and we have to find force. So let's assume that rho is constant and we have to find force. So the traditional method to do is would be integration, because at each depth, at each y, the force is the pressure is changing, because pressure varies with depth according to rho y g. So pressure is changing. So you'll have to make such strips and integrate it. So we'll just do some pre-calculation to see how if we will do some pre-calculation and see that how we can derive some results which help us, which save time on this kind of pre-calculation. तो basically कर क्या रहे हैं कि हमने जैसे y depth पे एक strip ले ली जिसकी जो thickness है that is dy. Now this thickness is dy, so we have to find the force, and basically we'll find the force on this strip and we'll integrate it to get the force on the entire area. So this is the area, which this thing has area A, and we need to calculate the force on this because of fluid pressure. So force on this strip, which we can write as df, will be equal to the pressure times the infinitesimal area. So pressure यहाँ पे P naught, which is atmospheric pressure, plus rho yg, which is pressure due to depth. Rho is the density of the liquid, which I have assumed constant. G is obviously acceleration due to gravity, and y is the depth times area. Area I can assume as dA. If you don't know the area, you know dy. So this thing is dy. If you can somehow find this thickness, so this length or width, let's say it is L, then area dA will become L dy. But for now, let's say that the area is just dA. We don't know what the area is. We just write it as dA. So let's see how this helps in calculation. So जब हमें force calculate करना है, so that is P naught plus rho yg df, right? And if I integrate df, I'll get the total force on this surface. So that is what I need to calculate. So that will be integration of P naught plus rho yg times dA, right? And यहाँ पे पहला term is P naught integral dA. So this integration is over area, right? So this is a surface integral. You have to integrate over all small areas here. So what you get is P naught. This is a constant. So this comes out of the integration. So integration over area of dA, plus again in this problem I assumed rho and g to be constant, which means rho and g will come out, and I have to integrate y over area y dA. This again is an surface integral. So over the surface, if I integrate dA, that is, this is simple, and you'll get P times A, which is the total surface area of the surface which I've assumed A, and now you have to find this integral. So this is the integral that will create problems. So let's see how we can simplify this integral. So if I write let you, मैं थोड़ी देर आपको कुछ बताता हूँ, थोड़ी देर आप सुनो, फिर यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या लिख रहा हूँ. तो इफ y centroid is basically the centroid area centroid, राइट? जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे उसका y कोऑर्डिनेट. एरिया का अगर हम सेंटर ऑफ एरिया निकालेंगे, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया निकाले, उसका y कोऑर्डिनेट, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी y टाइम्स dA अपॉन इंटीग्रल ऑफ dA. तो आई गिव यू टेल यू समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी नो. फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं? y cm इज इंटीग्रल y टाइम्स dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm, है ना, मास टोटल. तो सेंट्रॉइड ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम स्मॉल स्मॉल मास एलिमेंट्स लेते हैं, उनको उनके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, उसको ऐड करते हैं, जिसको इस इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट कर रखा है y dm, और टोटल मास से डिवाइड करते हैं, तो हमें y सेंटर ऑफ मास मिल जाता है. तो सिमिलरली अगर मेरे को y dm इंटीग्रल y dm निकालना होता है तो एक तरीका ये कि मैं सेंटर ऑफ मास ले लूँ, y कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास ले लूँ, और उसको टोटल मास m से मल्टीप्लाई कर दूँ. तो इसी तरीके से हमने एक एनालॉजी क्रिएट करी कि जैसे हम सेंटर मास का सेंट्रॉइड निकालते हैं, वैसे एरिया का भी सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं. और एरिया के सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इंटीग्रल y dA अपॉन dA. तो छोटे छोटे एरियाज लो, जैसे ये dA है, तो इस dA का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमने y अज्यूम कर लिया, मतलब y नीचे की तरफ, एंड उसको इंटीग्रेट करो, y को dA से मल्टीप्लाई करो, ya1 प्लस ya2 प्लस ya3, y1 प्लस y2 a2 प्लस y3 a3 ऐड करो और उसको टोटल एरिया से डिवाइड कर दो, तो एरिया का सेंट्रॉइड मिलेगा, है ना.
और अगर तुम्हें वाई डी ये इंटीग्रल निकालना है, तो जैसे हमने देखा कि वाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वाई वन एम वन प्लस वाई टू एम टू प्लस वाई थ्री एम थ्री बाई इंटीग्रल डी एम। तो वैसे वाई सेंटर ऑफ मास वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी एम बाई टोटल इंटीग्रेशन ऑफ मास। और अगर हमें वाई डी एम ये इंटीग्रल निकालना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रल वाई डी एम विल बी इंटीग्रल डी एम टाइम्स वाई सी एम, और इंटीग्रल डी एम इज एम, राइट, एम बेसिकली टोटल मास। तो इस तरीके से हमने इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। तो इसी एनालॉजी को अगर कंटिन्यू करें, तो अगर मेरे को इंटीग्रल वाई डी ए निकालना है, जो हमारी प्रॉब्लम में यहाँ पे आ रहा है, इसको निकालना है, तो आई कैन राइट दिस एज ए टोटल इंटू वाई ऑफ सेंटर ऑफ एरिया, है ना। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि वाई डी अगर इंटीग्रेशन निकालना है, तो टोटल एरिया टाइम्स सेंटर ऑफ एरिया का वाई कोऑर्डिनेट। तो इस इक्वेशन में देखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ एरिया टाइम्स डी ए का इंटीग्रल विल बिकम ए, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट इंटीग्रल वाई डी ए, जो हमने यहाँ पे कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि वाई डी ए को आई कैन रिप्लेस बाय ए टोटल टाइम्स वाई सेंटर ऑफ एरिया, है ना। तो जो टोटल फोर्स हो गया, ठीक है, वो कितना हो गया, पी नॉट टाइम्स ए टोटल, ये कंट्रीब्यूशन हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, प्लस जो पानी के कारण प्रेशर है या कोई भी जो और फ्लूइड है उसके कारण प्रेशर है, दैट इज रो जी टाइम्स वाई सेंटर ऑफ एरिया टाइम्स टोटल एरिया। ठीक है, तो इसको इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो टोटल एरिया से। तो बेसिकली हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को किसी भी सरफेस, किसी भी रैंडम सरफेस पे मेरे को फोर्स निकालना है वाटर के कारण, तो मैं उसका सेंट्रोइड ढूंढूंगा, वाई सेंटर, मतलब वाई सेंटर ऑफ एरिया ढूंढूंगा। तो मान लो वो ये पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट क्या है, जैसे सेंट्रोइड ऑफ एरिया, जैसे सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे सेंट्रोइड ऑफ एरिया। अगर एरिया का सेंटर ऑफ मास निकालोगे, एरिया का सेंटर मतलब एरिया का सेंटर निकालोगे, उसका जो ये वो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जो सरफेस है उससे मैं देखूंगा कि इस पॉइंट का डेप्थ कितना है। मान लो इस पॉइंट का डेप्थ वाई है, तो इसके कारण यहाँ पे प्रेशर, पानी के कारण यहाँ प्रेशर कितना होगा, रो जी वाई, है ना। ये वाई बेसिकली क्या है, जो सेंट्रोइड एरिया का उसका वाई कोऑर्डिनेट है। तो ये बेसिकली एक प्रेशर है जो सेंट्रोइड पे प्रेशर है, और उसको उस प्रेशर को पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यही ट्रिक हो गई क्या कि हमें उसका सेंटर ऑफ एरिया निकालना है, जो काफी नोन रिजल्ट्स होते हैं। तो हमें सेंटर ऑफ मास पता होता है, और वही सेंटर ऑफ एरिया हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म सरफेस है। तो बेसिकली ऐसा समझ लो कि अगर तुम्हें सेंटर ऑफ एरिया निकालना है, तो तुम मान लो कि एक यूनिफॉर्म मास की प्लेट है इधर, और मेरे को ये निकालना है कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो एरिया का सेंटर इज बेसिकली लाइक सेइंग कि किसी यूनिफॉर्म मास की प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सर्कल है, तो यूनिफॉर्म मास का सर्कल है, यूनिफॉर्म मास की सर्कुलर प्लेट है, तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो इस पूरे सर्कल का सेंटर ऑफ एरिया भी बीच में होगा, है ना। अगर फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल होता तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता, अगर यूनिफॉर्म रेक्टेंगल होता, यूनिफॉर्म मास का रेक्टेंगल, वैसे ही इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ एरिया भी यहाँ होगा। तो ज्योमेट्रिकली बहुत आसानी से हम बिना कैलकुलेशन के बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ एरिया कहाँ होगा। उस सेंटर ऑफ एरिया पे प्रेशर निकालेंगे रो जी वाई से, जो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, और उसको डायरेक्टली टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल फोर्स आ जाएगा, हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। तो मान लो जैसे क्वेश्चन होता है कि इफ यू हैव दिस सरफेस एंड यहाँ पे ये वॉल है ना, ये वॉल बेसिकली ऐसे है, एंड ये मान लो एल लेंथ की वॉल है, और ये एच इसकी हाइट है या डेप्थ है, जो भी कह लो। इस पे हमें ये यहाँ पे फ्लूइड भर रखा है ना। तो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा फ्लूइड इस पे, तो हमें बताना है कि फोर्स कितना होगा। तो एक तरीका है कि इंटीग्रेशन कर लो, बट इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, एक तो पी नॉट लो, उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो एल एच, प्लस यहाँ पे जो सेंटर ऑफ एरिया है, ये सेंटर ऑफ एरिया है, जिसको तुम सेंटर ऑफ मास की तरह सोच सकते हो यूनिफॉर्म अगर मान लो सरफेस को। तो सेंटर ऑफ एरिया इस ये h/2 डेप्थ पे होगा, तो उस पे प्रेशर लिखो, तो रो h/2 g टाइम्स टोटल, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और मतलब ये तो एल एच मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी एल एच मल्टीप्लाई करो, तो बेसिकली पी नॉट प्लस प्रेशर एट सेंट्रोइड विच इज रो h/2 जी टाइम्स एल एच, है ना। तो इस तरीके से तुम बिना इंटीग्रेशन के डायरेक्टली प्रेशर निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल एक और प्रॉब्लम लेते हैं कि मान लो ये सरफेस है, और मैं बोलूँ कि ये ट्राइंगल है, इस पे मेरे को बताओ फोर्स कितना लगेगा। तो मान लो ये वाला डिस्टेंस हमें ए दे रखी है, और ट्राइंगल की साइड बी दे रखी है ना। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है मान लो, और ये वाली बेस पैरेलल है सरफेस के। तो टोटल फोर्स निकालना है, तो इंटीग्रेशन के बिना कर सकते हैं। पी नॉट प्लस इस सेंट्रोइड पे प्रेशर लिखो कितना है, ये सेंट्रोइड जो एरिया का सेंट्रोइड होगा वो ट्राइंगल के सेंट्रोइड से कोइंसाइड कर जाएगा। ये डिस्टेंस 2b/3 हो जाएगी, है ना। वो तुम देख सकते हो, जो भी हो, अगर कोई और फिगर है तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो a प्लस 2b/3, सॉरी 2b/3 नहीं होगी, 2b इंटू रूट 3/2/3 होगी ना। ये वाली डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो, ये तुम्हें पता होगा रिजल्ट, b √3/2 होती है, एंड उसका ये डिस्टेंस 2/3 होता है, तो 2/3 टाइम्स b इंटू √3/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, b/√3 आ जाएगा, तो इसको तुम कैंसिल कर सकते हो, b/√3 टाइम्स ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ वाटर या फ्लूइड g टाइम्स ऑफ टोटल एरिया √3/4,
डी स्क्वायर। तो एक लाइन में कैलकुलेशंस कर सकते हो, कोई भी फिगर हो, जैसे सेमी सर्कल होता है तो तुम्हें पता है उसका सेंट्रोइड कहाँ होगा, हेक्सागन होता है, फिर कोई भी और फिगर होती है तो तुम आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। सो आई होप तुमने कुछ नया सीखा इस वीडियो में, एंड फ्लूइड के कुछ प्रॉब्लम, फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तुम आसानी से सॉल्व कर लो। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ वीडियोस, एंड थम्स अप भी दे देना, इट हेल्प्स। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू।